Are we live? Are we live? So अभी बज रहे हैं 4:39 AM। सो गया था थोड़ा। अब फिर थोड़ा गिल्ट आने लग गया, उठ के मन तो नहीं कर रहा था स्ट्रीम करने का, और थोड़ा गिल्ट आने लग गया कि साला स्ट्रीक टूट जाएगा यार। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद रेस्ट करेंगे। कल आई हैव अ लॉट टू डू। कोई बात नहीं यार, कल मे बी आई वोंट कम, बट ठीक है, आई विल ट्राई टू कम। करना है यार, पढ़ना है, अच्छा अच्छा जॉब लेना है, पैसा कमाना है बहुत सारा। लेट्स स्टार्ट। सो हम इधर थे। चेक इफ द नंबर इज फाउंड इक्वल्स टू द अल्फाबेट लेंथ। मेरा थिंकिंग पावर ना ज़ीरो हो चुका है। ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो। Hey, what are you doing with so many laptop? I'm just trying to save my job because he's trying to replace me. How do you become? What is a pangram? A pangram is nothing but a special type of string which has all the letters of the English alphabet occurring at least once. So it will have every letter A to Z, and they can be repeated multiple number of times, but every letter will occur at least once. Once you Okay. understand this problem becomes fairly simple to solve. So let's see what we can do about it. Hello friends, welcome back to my channel. First, I will explain you the problem statement and we'll look at some sample test cases. Going forward, we are going to start with the brute force approach and then try to see how we can come up with multiple optimal solutions. After that, we will also do a dry run of the code so that you can understand and visualize how all of this is actually working in action. Without further ado, let's get started. First of all, let's try to make sure that we're understanding the problem statement correctly. In this problem, you are given a string and you have to check if it is a pangram. Now, what is a pangram? A pangram is just a special type of string which has all the characters of the English alphabet from A to Z at least once. So, to understand it better, let us look at our sample test case. So, in our test case number 1, I have this string, right? And you know that this is a very popular string which contains every letter of the English alphabet, all the way from A all the way up till Z, right? So for this particular test case, you need to output true as your answer because you can find each and every character from A all the way up to Z, right? Similarly, if you look at our second test case, I just have a small string, right? And you can easily see that this will not have all the 26 characters. So for this particular test case, you need to output false as your answer because you cannot find all the different characters and hence this string is not a pangram. So this problem is relatively very simple to understand. So how do you go about solving it? When you think about this problem in the most naive way, what comes to your mind? What you can do is you can start with each and every character. You start with the character A and then you will try to find this character if you can find it in the string, right? You start traversing the string from the beginning and you see that, hey, you found an A. So you are good, right? Similarly, what you're going to do is you will start with the next character and that is B. Once again, you will start traversing your string and hey, you found a B. Similarly, you will do this for every character all the way up to the last character and that is Z, correct? If you are able to find each and every character, then yes, this string is a pangram. If at any moment you encounter a character, let's say X, and you do not find the character X anywhere in this string, then this string will not be a pangram and you can return a false. So technically, this method is perfect and it will give you a correct answer each and every time. But do you see the problem with this approach? In this approach, you are iterating the string again and again, right? Try to think about it. For every character, you are starting from the beginning and going all the way up to the end. What happens if your string is very large? Let's say you have 10,000 characters. Then for every alphabet, you have to traverse the entire string again and again, right? So this will waste so much of your time.
and hence this approach is not desirable. And you will be asked to come up with a better or an improved solution. So what do you do about it? Once again, I have this sample string with me, right? And you know that the letters in the English alphabet are fixed. You only have 26 characters, correct? So one approach that comes to your mind is, okay, what if somehow you can store, hey, what are the characters that I have already encountered? So what are you going to do is just create an array of the size 26. So you see over here that I have an array that has a size 26. So you can see that the index 0 should correspond to the letter small a, and the index 25, it will correspond to the letter Z, correct? And once this array is initialized, all of these values, they will be set to 0, correct? Since this is an integer array. So what you can do is, you can start iterating your string character by character. The first character that you encounter, that is the character T, right? And T is the 20th character in your English alphabet. Given an array starts from 0. So that means this should appear at the index 19, right? So what will happen technically is, somewhere you will have an index 19 over here in your array, right? And its value will be also 0 right now, correct? So as soon as you see the character T is 20th position, its index will be 19. So go on to the 19th position and change this value to 1. Now move on to the second character. The second character is H, correct? And H comes at the 8th position in the English alphabet. 8th position means a 7th index, and you will go at the 7th index in your array. And currently its value will be 0 once again, right? Whatever be the value, just change this value to 1. Similarly, what you're going to do is, you will keep on doing this for each and every character. For every character that you encounter, just change the value in this array to 1, right? तो उसको पता कैसे Now, चलेगा once you कि have iterated through this entire A 0 है, if a 0 character पे was A होना present, चाहिए. its value will have changed to 1, right? And if a character was missing, then you can never approach that index, right? Think about it. If this string did not have the character Y, then there is no way that this value would have changed to 1, correct? And once you have completed the iteration of your entire string, just look at your array once again. If you find any value to be 0, that means there was at least one character which did not occur in this string, and hence you can say it to be false. If you found all the values to be 1, that means you have encountered every character at least once, and hence this string will be a pangram, right? Now, this is a very efficient approach because you are iterating through the string only once. But there can be some cases where the interviewer asks you that, hey, can you even optimize this problem even further? Try to think what happens if you get a string that looks something like this. You could have all the letters of the English alphabet A, B, C, D all the way up to Z, and then once again you have all the characters A, B, C all the way up to Z, and then once again you have A, B, C all the way up to Z, and this is repeated several times. So what will happen in this case? You will encounter each character one by one, right? And once you are done with the character Z, you have already filled up your entire array and all of the numbers are 1, correct? But you have all of this string still remaining. You will have to parse this entire string. There is no way that you can check, hey, am I already done? So in those kind of edge cases, you can try to come up with an even efficient approach. And that is where we can try to use a hash fet. How does a hash fet work? If you're new to hash fets, I would highly recommend you to check out my video on hash fet first, because that way you will be able to understand it even better. So coming back to our problem, once again I have my sample string with me, right? Now the purpose of a hash fet is that you cannot have any duplicates in a hash fet, correct? So what I can do is I can create an alphabet set, and in that alphabet set I will add every character. I will add all the characters from A all the way up to Z, right? So in this hash fet, now I have every character, and what I will do is I will start iterating the string character by character once again. The first character is T, right? So just look in your hash fet and remove the character T. T is gone, right? Now move on to the next character, and that is H. Once again, go in your hash fet and remove the character H. Now the next character is E.
go in your hash set and remove the character E. So what is happening? With every character, you will go in your hash set and try to remove it. If the character exists, well and good, the character will get removed. If not, then okay, no worries. It is a hash set and it does not matter, right? But there is a neat advantage over here. What you can do is, after removing every character, you can check if your hash set is empty. Because think about it. If I have the same string with me, that is A, B, C all the way up to Z, and then once again A, B, C all the way up to Z, and this is repeated several times. As soon as I encounter all the characters, that means as soon as I'm at this position, I will have removed every character in my hash set, right? And if I check that, hey, is my hash set empty, then I no longer need to process all of this remaining string, right? So that is saving me some time. And hence, I would recommend the approach of using this hash set because it looks neat and clean and it saves you some time as well. So based upon this approach now, let us quickly do a dry run of the code and see how it works in action. On the left side of your screen, you have the actual code to implement this solution. And on the right, I have my sample string that is passed in as an input parameter to the function checkIfPangram. Oh, and by the way, this complete code and its test cases are also available on my GitHub profile. You can find the link in the description below. So moving on with the dry run, what is the first thing that we do? First of all, we create a hash code and its test cases are also available on my GitHub profile. You can find the link in the description below. So moving on with the dry run, what is the first thing that we do? First of all, we create a hash set that will contain all the characters, right? And as soon as I create this set, what I will do? I will try to add all of my characters all the way from the small a and all the way up to capital Z. So once this loop executes, my set will be complete, right? You can see that it has all the characters from A all the way up to Z, right? Now moving on, we start a for loop. And in this for loop, we iterate over each character one at a time, correct? And for every character, what do? I remove this character from my set, right? So when I encounter T, I will try to remove T from my set. T gets removed, right? I will do this for every character. And at any instance, if this alphabet set is empty, that means I have encountered every character and I can simply return true as my answer. If this loop completes and I still have remaining characters in my hash set, that means this string was not a pangram and I'm gonna return a false. Without hash The set, time complexity hash of this set solution is कैसे order of करेंगे? n because you have to iterate through the entire string in your worst case and the space complexity of this solution is order of 1.
just want to say that जरूर इसके अंकल की कोई सेटिंग वेटिंग होगी। जितना इलॉजिकल ये है उतना ही इलॉजिकल ये है। नई नौकरी करने जा रहे हैं जरूर इसके अंकल की कोई सेटिंग वेटिंग होगी। करियर सेटिंग से नहीं, गो गेटिंग से बनता है। डाउनलोड नौकरी ऐप एंड मेक योर करियर हैपन। ये हमारा स्मॉल है, ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो इस अप्रोच में हमें क्या करना है? इस अप्रोच में हम क्या करेंगे, हम एक एरे बना लेंगे, एक एरे बना लेंगे ARR, ठीक है। ये हम किस टाइप का बनाएंगे? ये हम बनाएंगे 26 साइज का। क्यों? इसे हम बनाएंगे न्यू इंट ऑफ 26 साइज का, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पे हम इसे बूलियन भी बना सकते हैं, इंट भी बना सकते हैं, तो इसे हम बूलियन बना लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो इसे हम बना लेते हैं बूलियन टाइप का। ये बेसिकली स्टोर करेगा कि कोई भी हमारा कैरेक्टर प्रेजेंट है कि नहीं। तो अगर हम देखें, हमने क्या किया, 26 साइज का एरे बना लिया, 26। इसका इनडायरेक्टली नंबर मतलब क्या है कि हमारे जो इंग्लिश लेटर्स हैं, इंग्लिश, इसमें कितने अल्फाबेट है? इसमें हमारे के लिए, सी के लिए, डी के लिए, E F G H करेंगे फॉर लूप के थ्रू। और अगर हमें ए मिल जाता है तो इस पोजीशन को ट्रू कर देंगे, अगर बी मिल जाता है तो इसे भी ट्रू, इसे भी ट्रू करेंगे, वो फॉल्स होते करेंगे। हमें मिल गया तो हमें इसे क्या करना है, हम इसे ट्रू मार्क कर देंगे फॉल्स की जगह, फॉर लूप का यूज करके। DEF है, हम क्या करेंगे, हम उसको ट्रू मार्क कर देंगे। मान लो हमें, तो इनिशियली जो होता है, इनिशियली हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फॉल्स होते हैं, मान लो हम इसे ट्रू मार्क कर देंगे फॉल्स की जगह। लूप चलेंगे i इक्वल टू 0 से i लेस देन कहाँ तक, i लेस देन 26 तक चलाएंगे i प्लस प्लस। और इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें जो भी, अगर हमने किसी भी एलिमेंट पे, अगर हमारा एरे एट आई, जो हमने ये एरे बनाया है, अगर ये हमारा एरे एट आई कहीं पे भी फॉल्स होता है, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। वरना क्या होगा, जैसे ही हमारा लूप खत्म होगा हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। अब ये चीज हमें करनी है, ठीक है। तो अब ये चीज करने के लिए हमें सबसे पहले, हम इन एलिमेंट्स को ट्रू कैसे मार्क करेंगे वो पता होना चाहिए, ठीक है। हम इन एलिमेंट्स को ट्रू कैसे मार्क करेंगे वो पता होना चाहिए। तो इन सभी एलिमेंट्स को मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे ASCII कैरेक्टर्स का। ASCII क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके हिसाब से हर जो कैरेक्टर होगा, जैसे A हमारा एक कैरेक्टर है, B एक कैरेक्टर है, C एक कैरेक्टर है, हाइफन एक कैरेक्टर है, माइनस एक कैरेक्टर है, ठीक है, माई अंडरस्कोर, उसके बाद हाइफन, एडिशन, प्लस वाला साइन, ये कैरेक्टर है। तो ये सब हमें हमारे कैरेक्टर है, और हर कैरेक्टर को कोई ना कोई वैल्यू दी गई है। तो हमारे स्मॉल ए को क्या वैल्यू दी गई है, इसे दी गई 97, स्मॉल बी को 98, स्मॉल सी को 99, ऐसे कर करके हमें जेड तक पूरा कंटिन्यूअसली दिया गया है। तो जेड हमारा क्या आएगा, 97 प्लस 26, तो हमारा हो जाएगा 10 6 13 133। तो 133 तक हमारा पूरा कोड दिया जाए। अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, अपना फॉर लूप चलाएंगे कहां से, i इक्वल टू 0 से i लेस देन जो भी इस सेंटेंस की लेंथ होगी। तो इस सेंटेंस की लेंथ को निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है। जैसे इस सेंटेंस कौन सा होगा, सेंटेंस इसका नाम है सेंटेंस डॉट लेंथ, और यहाँ पे पैरेंथेसिस हम लगाते हैं। उसके बाद इसे 1 से अपडेट कर देंगे, 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे हर बार। और इसके अंदर हमें क्या करना है, जो भी हमारा एरे के कौन से इंडेक्स पे, अगर हमारा ए है तो हमें कौन से इंडेक्स पे अपडेट करना होगा, 0 इंडेक्स पे। अगर हमारा जेड है तो हमें कौन से इंडेक्स पे अपडेट करना होगा, 25th इंडेक्स पे करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा ए हुआ तो हमें यहाँ पे अपडेट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इस सेंटेंस के ith इंडेक्स पे कैर होगा। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए लेट्स टेक द एग्जांपल, अगर हमारा एग्जांपल है ABCD, नहीं, लेट्स टेक समथिंग राम, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें आर के लिए अपडेट करना है। तो आर का इंडेक्स क्या होगा, आर का इंडेक्स हमारा होगा 17th इंडेक्स होगा हमारा, क्या होगा 17। तो एरे एट 17 को हम 1 से बढ़ा देंगे, ठीक है। अब ये 17 हमने कैसे निकाला, दैट इज द क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, 17 निकालने के लिए हम कौन सा अप्रोच लगा रहे हैं, यहाँ पे हमको जो वैल्यू रखनी इन दोनों स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में, वो कैसे आएगी, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या करना है, जो भी हमारा यहाँ पे कैरेक्टर होगा, यहाँ पे क्या था आर, मतलब i इक्वल टू 0 पे आर है, i इक्वल टू 1 पे ए होगा, i इक्वल टू 2 पे एम होगा। तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस डॉट कैर एट हमारा क्या करता है, उस पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर होता है वो रिटर्न कर देता है। तो इस केस में, राम के केस में क्या रिटर्न करेगा, आर रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से आर मिल जाएगा। बट
अगर हम देखें ये हमें r जो है हमारा वो हमारा इजीली इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है, और r हमारा किस में कन्वर्ट होगा, r हमारा कन्वर्ट होगा अगर हम ASCII टेबल में आपको दिखाऊं, लेट्स सर्च फॉर ASCII टेबल के लिए अपन देखते 97 कहाँ पे है, 97 से देखते हैं, ये देखो माइट भी विजिबल होगा, हाँ इट्स विजिबल। हम क्या कर रहे हैं, हमको किसके लिए ASCII कैरेक्टर चाहिए, हमें चाहिए r के लिए, ये हमारा स्मॉल r होगा, हर जगह पे हमें स्मॉल स्ट्रिंग दिखे, स्मॉल r हमारे उसके लिए ASCII कैरेक्टर क्या है अगर हम देखें उसके लिए, तो 14 हमारा कैरेक्टर क्या है 114। तो अगर हम 114 में से 20 से सॉरी 97 माइनस कर दे, 97 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 97 हमारा a का ASCII है, अगर देखें हम तो ये देखो a का क्या है 97 है, तो हम अगर इससे a माइनस कर देते तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 17 मिलेगा। लेट्स सी क्या मिलता है, 14 माइनस 7 इज 7 एंड 10 माइनस 9 इज 1, हमें क्या मिल रहा है 17। तो हमें 17th इंडेक्स पे जाना है और ये प्लस प्लस नहीं करना है, उसको हमें क्या कर देना है, उसे हमें ट्रू कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखने वाले बीच में सेंटेंस डॉट कैरेट, इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा 114 मिलेगा, और उसमें माइनस 97 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 17, और हम उसकी वैल्यू को ट्रू कर देगा, और कंटिन्यूअसली ये फॉर लूप के थ्रू उसके बाद क्या होगा हमें a मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा a की ASCII वैल्यू क्या है 97, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 97 माइनस 97, तो ये क्या होगा, ये हमारा 0, तो एरे एट 0 पे जाएगा और उसको ट्रू कर देगा। वाओ, ए के लिए हमारा ये ट्रू हो चुका है। फिर क्या मिलेगा, m मिलेगा, तो m को अगर हम देखें m के लिए ASCII क्या है 109, तो 109 माइनस 97 करेगा तो हमारा मिलेगा 2 एंड दिस इज 1। 12th इंडेक्स पे जाएगा 0 1 2 3 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको क्या कर देगा ट्रू कर देगा। ऐसे जब तक हमारा फॉर लूप नहीं खत्म होता ये कंटिन्यूअसली जितने एलिमेंट हमको मिल जाएंगे उसको ट्रू मार्क कर देगा, ठीक है। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, सेंटेंस डॉट कैर एट आई माइनस 97। कीटोरेट हेल्प करता है स्वेट में लूज हुए इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड्स को रिप्लेस करने में। जर्म्स आणि तेल त्वचेवर लागोपाठ हल्ला करतात आणि देतात तुम्हाला पिंपल्स सतत। पिंपल्सची करायची आहे फाईट, मग फक्त सोप का, स्विच टू गार्नियर मेन ॲक्नो फाईट फेस वॉश। याने पिंपल्सला कारण ठरणारे जंतू 99.9% पर्यंत कमी होतात फक्त 10 सेकंदात आणि देतो पिंपल फ्री क्लियर स्किन। ट्राय करा गार्नियर मेन ॲक्नो फाईट फेस वॉश। चलिए अब इन सब चीजों को मिटा देते हैं और अपने कोड को लिखते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन जो भी इसकी लेंथ होगी, मान लेते हैं n, और इसे 1 से बढ़ा देंगे। इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, लेंथ फंक्शन यूज करेंगे। और क्या करेंगे इसके अंदर हमें क्या करना है, जो भी हमारा एरे एट क्या करना है, किस इंडेक्स पे जाना है, हमें जाना है सेंटेंस डॉट कैर एट आई पे, और उसमें से 97 माइनस कर देना है और उसको हमें क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। और जैसे ये फॉर लूप खत्म होगा तो हमारे यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स मिले होंगे, जितने भी कैरेक्टर्स मिल जाएंगे ए टू जेड के बीच में, सभी ट्रू हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, फॉर जैसे ये हमारे सभी एलिमेंट्स मिल जाएंगे, हम i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन 26 तक अपने इस एरे को चलाएंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपना अगर कोई एलिमेंट हमें फॉल्स मिलता है तो हम फॉल्स रिटर्न कर दें। अगर कोई एलिमेंट फॉल्स मिलता है उसका क्या मतलब है, वो हमारा इस सेंटेंस में प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, उस केस में फॉल्स रिटर्न करना है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ जो भी हमारा सेंटेंस डॉट एट सेंटेंस नहीं, जो भी हमारा एरे एट आई होगा, अगर वो इक्वल टू फॉल्स है तो उस केस में हमें क्या कर देना है, रिटर्न फॉल्स। वरना हमें क्या करना है, जैसे ये फॉर लूप खत्म होगा हम कर देंगे रिटर्न ट्रू। तो होगा क्या, जैसे ही हमें रिटर्न फॉल्स नहीं मिलेगा तो लास्ट में वो हमारा इनडायरेक्टली ट्रू होगा और वही हमें मिल जाएगा। तो चलिए इसके लिए कोड करते हैं अब। तो आ गए अपने एडिटर के ऊपर, हम अपना सेम अप्रोच करेंगे। सबसे पहले एक बूलियन एरे बना, ठीक है भाई, पहले ब्रूट फोर्स मारते हैं, उसके बाद देखते हैं यही इससे कैसे करता है ना, हैश मैप से करता है या किसी और अप्रोच से करता है। पहले एक बार इधर भी देख लूँ, से बताऊंगा इसका मतलब क्या है। इज इक्वल टू ट्रू, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है, मान लेते हैं s जो है मेरी ABC है। अच्छा सी बात है, ठीक है। फाइनल जो 26 लेंथ की एरे है उसमें देख रहे हैं, उसमें लूप चला रहे हैं। अगर उसमें से कोई सा भी फॉल्स आया तो रिटर्न फॉल्स कर दीजिए अथवा रिटर्न ट्रू कर दीजिए। वैल्यू पर 26 लेंथ, ठीक है, सेट ले लेते हैं और हर लेटर को उस सेट में पटकते जाएंगे। अब हमें पता है कि सेट में क्या करते हैं, सेट में यूनिक वैल्यूज पड़ी हुई होती हैं। जब पूरी की पूरी स्ट्रिंग ट्रेवर्स हो जाएगी तो हम चेक कर लेंगे कि क्या उस सेट की लेंथ 26 है। 26 लेंथ का मतलब क्या है, 26 लेंथ का मतलब है कि सारे लेटर्स जो हैं उसमें पटके जा चुके हैं। 26 ही क्यों, क्योंकि मान लो ये स्ट्रिंग है मेरी A, ठीक है, फिर B C D E F अप टिल Z, ठीक है। अब देख एग्जिस्ट कर रहे हैं है ना, स्टार्ट करते ही लूप लगा लेते हैं फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन, सेंटेंस को s लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम आलसी हैं। s डॉट लेंथ i प्लस प्लस s डॉट कैरेट, ठीक है। अभी मैं बस आंख बंद करके ये चीजें लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। कैर करंट
इज इक्वल टू दिस। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अभी तक लूप लिख लिया है, ठीक है, लूप लिख लिया है कि हर एक कैरेक्टर को मैं देख रहा हूँ इस सेंटेंस में, ठीक है। अब करूंगा क्या, मैं एक काम हम कर सकते हैं, एक सेट ले लेते हैं, ठीक है, सेट ले लेते हैं और हर लेटर को उस सेट में पटकते जाएंगे। अब हमें पता है कि सेट में क्या करते हैं, सेट में यूनिक वैल्यूज पड़ी हुई होती हैं। जब पूरी की पूरी स्ट्रिंग ट्रेवर्स हो जाएगी तो हम चेक कर लेंगे कि क्या उस सेट की लेंथ 26 है। 26 लेंथ का मतलब क्या है, 26 लेंथ का मतलब है कि सारे लेटर आऊंगा और सेट कर ले, कुछ नहीं करना ना, कुछ नहीं करना है, सेट में ऐड करते जाइए बस, ठीक है, जैसे लिस्ट में ऐड करते हैं ऐसे ऐड करते जाइए और कुछ नहीं करना है आपको। फिर आखिरी में चेक कर लीजिए कि क्या उसकी लेंथ 26 है। अगर 26 है इसका मतलब बहुत बढ़िया, ट्रू रिटर्न कर दीजिए। मैं करूंगा रिटर्न s डॉट साइज, सॉरी सेट डॉट साइज इक्वल इक्वल 26। इसका मतलब क्या है कि अगर 26 है उसका साइज, इसका मतलब क्या है, पैनग्राम भी है, यानी कि ट्रू रिटर्न करना है। रन करते हैं, एक्सेप्ट हो गया है, सबमिट करते हैं, सबमिट भी, यानी कि ट्रू रिटर्न करना है। रन करते हैं, एक्सेप्ट हो गया। साइज क्या होगा, स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग रिटर्न एस, ऐसे ऐड करते जाइए और कुछ नहीं करना है आपको। फिर आखिरी में चेक कर लीजिए कि क्या उसकी लेंथ 26 है। अगर 26 है इसका मतलब बहुत बढ़िया, ट्रू रिटर्न कर दीजिए। मैं करूंगा रिटर्न s डॉट साइज, सॉरी सेट डॉट साइज इक्वल इक्वल 26। इसका मतलब क्या है कि अगर 26 है उसका साइज, इसका मतलब क्या है, तीनों अप्रोच लाएंगे भाई, ठीक है। तो पहले ये वाला अप्रोच देखते हैं, इसको लेके आते हैं इधर, ओके परफेक्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, एक बुलियन एरे बना देंगे 6 तक। तो एक बुलियन एरे बना दिया, इसको नाम क्या दे दे, ए आर आर दे देते, पक ए आर आर दे देते, इक्वल्स टू न्यू बुलियन, इसमें देते इसका लेंथ 26 होना चाहिए भाई, करेक्ट। अब नीचे जाएंगे और जो सेंटेंस है उसका हर एक, तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 i लेस देन सेंटेंस डॉट लेंथ i प्लस प्लस, आई ले लिया, सेंटेंस का गया। अब हम लेंगे इफ if int I equals to 0 I, नहीं यार मैं क्या, फक मेरा ब्रेन डेड हो गया है भाई। integer I equals to 0 I less than sentence dot length I equals to, अगर पहला वाला है, नहीं अपन क्या करेंगे पता है, ए आर आर ऑफ, कौन सी जगह पे रखेंगे इसको, कौन से वाले को सेट करेंगे, सेंटेंस डॉट कैरेट, सोली क्या खुल गया, कैरेट आई, इससे अपने को क्या मिल जाएगा, सेंटेंस मिल जाएगा, कैरेट आई मिल जाएगा -97 या -a कर लेते, इक्वल्स टू ट्रू, करेक्ट। अब ये फॉर लूप के बाहर आ गया है इफ, अभी एक और फॉर लूप चलाएंगे पूरे इंट i इक्वल्स टू 0 I लेस देन arr डॉट लेंथ
आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस पूरा ड्राइवर्स करेंगे। अब इंटीजर if arr of I equals to false या true, return true। नहीं नहीं रुक, equals to false, return false, else या else की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इधर से रिटर्न नहीं हुआ, तो डायरेक्ट रिटर्न ट्रू। थिंक दिस शुड वर्क। इज इट वर्किंग? कंपाइलेशन एरर इंट आई क्या दे रहा है ये? सेंटेंस डॉट लेंथ वेरिएबल सेंटेंस ऑफ टाइप स्ट्रिंग डॉट लेंथ नहीं होता, लेंथ ऐसे होगा क्या? लेट्स रन इट अगेन। वर्क्स लाइक अ charm, charm। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देंगे। हाँ ये कितने सेकंड में हुआ? इसको करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये सब हटा देते हैं। सिंपल ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन विद जावा। अच्छा जो भी करेंगे वो ऐसा दिखेगा। ठीक है तो हमने क्या किया है सबसे पहले? ठीक है इसको हम ऐसे रखते हैं, इंट्यूशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है? 2 बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मालूम नहीं भाई। इसको हम हटा देते हैं भाई। So the first thing that comes to our mind is that we can we keep track of every alphabet if it string
इंट्यूशन है डालते डायरेक्ट अप्रोच डालता है। ठीक है।
fuck it bro, I'm not gonna write all this. डायरेक्ट कोड पेल देता हूँ, खत्म। ठीक है, अब लेट्स जो उसका था, पहले तो एक ये ले लेंगे, हैश मैप का वो कैसा था? हैश मैप का सिंटेक्स कैसा है? सेट है, सॉरी हैश सेट है, माय बैड। तो लेट्स इसको हटा देते हैं। तो एक सेट सेट ऑफ क्या लेंगे? स्ट्रिंग? नो, सेट ऑफ कैर। क्या है भाई सिंटेक्स भाई? सेट ऑफ कैरेक्टर बराबर इसके अंदर जाता है रैपर क्लास। सेट ऑफ कैरेक्टर सेट s equals to new hash set of type character या hash set। कितने का कर देंगे हम ये? 26। correct me if I'm wrong। अच्छा, ये 26 कर देंगे या कुछ भी कर देंगे? ठीक है, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हम व्हाट द फक, अब हम फॉर लूप चलाएंगे। फॉर इंट I equals to 0, I less than sentence dot length I plus plus क्या चल रहा है? ये वर्क क्यों नहीं कर रहा? चल तो रहा है, इधर क्यों नहीं चल रहा? फक इट यार। A to Z डाल रहा है वो पहले, ठीक है, फिर सेंटेंस से रिमूव कर, अगर एम्प्टी है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ये कैसा कर रहा है? इसने एक सेट लिया, उसके लेंथ किया और सेट में डाल दिया, अगर उसका साइज 26 है। हाँ, ये दिस इज नाइस। हाँ, तो मैं ऐसे ही करता हूँ ना, एस डॉट लेंथ करेक्ट। अरे यार, ये नीचे क्यों नहीं हो रहा? ओह फक, कॉपी करना चाहिए था। सेंटेंस डॉट लेंथ, तो जाओ सेट या एस डॉट क्या होता है, ऐड, क्या करना है, सेंटेंस डॉट कैरेट आई हम डाल देते हैं। डाल दिया। अब क्या कर देंगे? रिटर्न
set dot length equals to 26. My bad. साइज फंक्शन नाम है इसका, साइज। बढ़िया। दूसरा अप्रोच, एक में इसने क्या किया था, स्मॉलर देन, क्या क्या था, इक्वल्स टू ए, ग्रेटर देन सी, ये सेट में ऐड कर दिया सब, इसको रिमूव करते गया। हाउ, आई थिंक सॉल्यूशंस देखने चाहिए 100% जो वर्क करते हैं। सेंटेंस 26 का है ही नहीं तो फॉल्स डायरेक्ट, फिर लेटर इसके अंदर डाल दिया ये, फिर without length, फिर सेंटेंस ऐड का। हम्म क्रेजी।
चलो भाई, कल करते भी बाकी। ऑल राइट, आज 1 घंटा लग गया हमको एक ही क्वेश्चन के पीछे। चलो, तो आप देख रहे हैं अभी 6 बजने वाले, ऑलमोस्ट 5:30 हो रहे हैं, तो लेट्स आई हैव लाइक बिजी डे टुमारो, सो व्हाट वी कैन डू इज डू टुमारो। ऑल राइट, सो मेरा थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है बकचोद प्रोग्रामर, नहीं, और आप देख रहे थे बकचोद प्रोग्रामर। मेरा नाम है सौरव बिष्ट, और